Today is a webinar. Today is a webinar of supply chain, and Sir Usher is given this presentation and webinar. So, sir, continue. Thank you very much. I hope कि मेरी आवाज आ रही होगी अभी. Change the internet connectivity. See, we'll start from there. अगर आपको आवाज नहीं थी तो दोबारा we'll start from there. Basically, supply chain is organizing people, organization, people, activities, and information and their resources to move a product from supplier to the customer or services to the supplier to the customer. जनरल प्रोडक्शन में हम ये कर रहे होते हैं कि हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, उसे फिनिश गुड बना के लोगों को पहुंचा रहे होते हैं, कस्टमर्स को पहुंचा रहे होते हैं. यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें. यस सर. आपका अगर कोई क्वेश्चन, आई एम श्योर अभी आप यू कैन हियर मी बेटर. I can. It's better. Sorry, man. So, when we move further to supply chain, में आपके पास supplier है, you have manufacturer, you have distributors, you have retailers, and then the customer. So the channel of supply chain. Supplier आपको raw material supply करता है या semi finished product supply करता है, और फिर आप उसे manufacture करते हैं. If you are a manufacturer, तो distributor तक आती है, distributor से retailer तक आती है, and then customer उसे purchase करता है. With passage of time in 2000 और अब जिस एरा से हम गुजर रहे हैं और उसके बाद आने वाली चेंजेस में ये आप ऑनलाइन पे चले गए. सो somehow in some businesses retailer is omitted. यानी डेल ने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप 2000 में कोई कस्टमर डायरेक्टली ऑनलाइन अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट भेज सकता है यूएस में, और उसमें फिर आपको इस शॉप तक नहीं जाना पड़ता या इस रिटेलर तक नहीं जाना पड़ता जहाँ पे लैपटॉप्स पड़े होते हैं या कंप्यूटर्स पड़े होते हैं. So it goes directly to the distributor or either it's now directly going to the manufacturer. क्योंकि अब ये दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ओमिट करने से फायदा ये हुआ कि कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि ये अपना मार्जिन रखते हैं प्रोडक्ट बेचने में, और मैन्युफैक्चर की डायरेक्ट एक्सेस है टुवर्ड्स कस्टमर. बट इट्स नॉट लाइक 100%. डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी मौजूद है हमारे दरमियान में और इनके बगैर काम नहीं चल सकता. But in small businesses, customer is directly linked to the manufacturer. और वहाँ पे वो दोनों अपने अपनी benefits ले रहे होते हैं. इनको कमीशन भी देना पड़ता है and customer get 10, 15 or 9% discount or many. Typical supply chain is this कि raw material extract होता है, supplier के पास जाता है, supplier manufacturer को बेचता है, manufacturer distribution companies के through distribution retailer या wholesaler तक पहुंचाता है, and then the customer and the consumer. इन दोनों के दरमियान में difference is that कि customer हर raw material supplier is the customer of raw material extracting, manufacturer is the customer of the supplier, distribution companies, logistics are the customer of the manufacturer. Everybody's customer, but the consumer is the last channel of supply chain where you get the feedback और यहाँ पे product वहाँ पे expire हो जाती है, use होने के बाद discard हो जाती है. So this is typical supply chain model in which हमारी जो normal routine की products हैं, FMGC products हैं, हमारे खाने पीने की जो products हैं वो typical supply chain से आते हैं. Then there is a complex supply chain model. Complex supply chain model में जब हम heavy industry की बात करते हैं, जहाँ पे we have aircrafts, air force के aircrafts and tanks and trains and submarines and ships. So वहाँ पे आप complex supply chain देख रहे हैं. Reason is that कि उसमें simple manufacturing या assembling नहीं हो रही. You have lots of raw material extractors या service providers. You have lots of manufacturing sites. ठीक है, एक साइट नहीं होती है आपके पास. यूरोप में किसी मुल्क में कुछ बन रहा है, दूसरे parts कहीं और पे बन रहा है. Then you have many warehouse and distributions, and then you have many consumers, retailers. अब अगर हम एक example ले लें, assume कि एयरफोर्स का कोई एक एयरक्राफ्ट बनता है अमेरिका में या यूरोप में या फ्रांस में, सो उसके रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा होंगे. एक कंपनी से मंगा रहा होगा, hundreds of companies will be involved in providing the raw materials. और उसके बाद वो उसमें एवियोनिक्स है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजन हैं, एंड मैनी थिंग्स है. सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन. इसी तरह अगर हम कोई सबमरीन डिजाइन कर रहे हैं, कोई शिप बना रहे हैं, इवन एयरबस के एयरक्राफ्ट हैं या बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं, सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन. उसमें
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन को अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग टू वे. यहाँ पर कस्टमर है एंड यू हैव अ सप्लायर. ठीक है. सो बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सप्लायर आपको या तो सेमी फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स देता है या रॉ मटेरियल देता है, और आप उसे या तो असेंबल करते हैं. अगर सेमी फिनिश मुख्तलिफ पार्ट्स आपने लिए एंड यू असेंबल लाइक लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स. सो डेल इज हैविंग अ कवर ऑन इट या एचपी इज हैविंग अ कवर ऑन इट, बट एचपी कोई हार्ड डिस्क नहीं बनाता या डेल कोई हार्ड डिस्क नहीं बनाता, कोई रैम नहीं बनाता, कोई मदरबोर्ड नहीं बनाता. सो व्हाट दे डू, दे गेट द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उनको वो इकट्ठा करता है and then they produce in a laptop shape or computer shape or whatsoever, and then they distribute it to customers. So there are two ways. आप या तो assemble करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, या फिर आप जो है खुद प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन अगर हम सोप की बात करें, शैम्पूज की बात करें, डिटर्जेंट्स की बात करें, मेकअप का सामान की बात करें, तो मुख्तलिफ कंपनीज दे प्रोड्यूसिंग इट. कार मैन्युफैक्चरिंग है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग है. सो उनके सप्लायर्स मुख्तलिफ हैं, वो raw material provide करते हैं and they produce it and then send it to the customer. So the basic supply chain concept is this. But the information should flow both ways. Supplier को ही पता हो कि कितना order place करना है, कितना raw material देना है and everything. And customer should know कि what is going on, what is the trends, what is the new requirement of the same product, same company, same brand. So if customer is aware, everybody is in a good business. प्राइमरी प्रोडक्ट फ्लो बेसिकली सप्लायर टू कस्टमर होती है. आपकी हमेशा प्रोडक्ट यहाँ फ्लो करती है. अगर मैं आईफोन खरीदने जाऊँ, सो क्या ये पॉसिबल है कि मैं आईफोन को 2 लाख रुपए दे दूँ और फिर मुझे प्रोडक्ट मिले? नो. द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, सप्लायर से रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर आती है, मैं रिटेलर की शॉप पर जाता हूँ या उसकी फ्रेंचाइज पे जाता हूँ सर्विस की, और मैं वहाँ पैसे पे करके एंड आई गेट द फोन. सो प्राइमरी प्रोडक्ट हमेशा सप्लायर टू कस्टमर फ्लो करता है. कैश रिवर्स में फ्लो करता है. कैश हमेशा कस्टमर टू अपवर्ड्स जाता है, टुवर्ड्स द एंड सप्लाई, द इनिशियल स्टेज ऑफ सप्लाई. और रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो करती है. रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो इज अ टोटल न्यू सप्लाई चेन. इसमें होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपकी जो प्रोडक्ट होती है, जब वो फिनिश हो जाती है, यू हैव टू गिव इट बैक. इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा मैंने कि अगर हम यूरोप वगैरह में देखें, अगर हम कार्ट्रिजेस यूज करते हैं प्रिंटर्स की, तो वो पूरी पैकिंग में आती है, एचपी की या डेल की, व्हाटएवर. उसका पूरा पैकेज होता है, उस कार्टन के अंदर स्टिकर्स होते हैं, एनवलप होता है. और यूरोप में मिडिल ईस्ट में होता है कि हम उसे रिफिल नहीं करते, हम उसे वी गिव इट बैक थ्रू मैनी रिसोर्सेज चैनल कि वो कंपनी को वापस चला जाए, और उसके अगेंस्ट हमें डिस्काउंट दे रहे होते हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट. उसकी कुछ रीजंस ये हैं कि एनवायरमेंटल लॉज होते हैं, कहीं पे आपको रिसाइकल प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है. जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो देयर इज नो चैनल, बट ये जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं, कोक, पेप्सी की, प्लास्टिक की या नेस्ले की या दे गोज बैक टू मैन्युफैक्चरिंग. ये सब नहीं. अगर हम चाइना या यूरोप में देखें तो अक्सर हम देखते हैं मूवीज में, दे क्रश देयर ओल्ड कार्स. वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन पर एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा होती है, या प्रोडक्ट को वापस करने की, रिसाइकल करने की. तो गाड़ियों वगैरह को स्क्रैप करके एंड दे यूज इट अगेन एज अ, उसको पिघला के दोबारा यूज करते हैं. सो रिवर्स प्रोडक्ट फ्लो होती है, बट इट इज एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्टली, इट इज अ टोटली न्यू सप्लाई चेन. मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आज जैसे दराज पीके है या ऑनलाइन बिजनेस है. ऑनलाइन बिजनेस में जब ऑर्डर खराब हो जाता है या गलत आ जाता है, तो you have to, it is cumbersome in Pakistan to give it back to the business वाला, यानी जो आपका प्रोड्यूसर है. सो एक मुश्किल तरीका होता है, गलत ऑर्डर आ जाता है. तो यूरोप वगैरह में इट इज़ वेरी इजी टू रिवर्स द प्रोडक्ट. तो जो डैमेज प्रोडक्ट्स है या जो सही ऑर्डर नहीं आया, उसको आप बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं. लेकिन इसकी कॉस्ट होती है और इसकी पूरी सप्लाई चेन अलग से डिजाइन होती है. सो दिस इज द बेसिक ग्राफिकल व्यू ऑफ द सप्लाई चेन. मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि मैको, खलीब जूसेस की कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिवर ब्रदर्स, ये मेरे बेसिकली प्रोडक्शन सप्लायर्स हैं. और इन सप्लायर से मैं मुख्तलिफ शहरों में जो है जनरल स्टोर्स हैं, जैसे हमारे इम्तियाज़ है, नाहिद है, आवाज़ है, हाइपर स्टार है. सो व्हाट दे डू इज़ कि ये मुख्तलिफ शहरों में इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेते हैं और अपने शेल्फ पे लगा लेते हैं सुपर मार्केट. एंड देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर. एक वो होता है जो होम बेस्ड कस्टमर होता है, और एक जो आगे रिटेलर होता है या छोटी शॉप्स होती है, वो बल्क में चीज़ें ले जाते हैं. सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन. आपका एक टायर वो है, एक सप्लायर है जिसे आप टायर वन कहते हैं. उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में जो आपके सुपर स्टोर्स हैं, उनकी ब्रांचेस में ये जा रहा होता है आपकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, और वो शेल्फ पे लगी होती है. एंड
Personal people sell for home grocery, for the sale grocery जो है ना वो end customer को देना है. Supply chain management basically है क्या चीज? Definition है, but इसका असल motive क्या है? What is the motive of the supply chain? Basically, motive of the supply chain is to fulfill this demand of the customer. इस demand को पूरा करने के लिए you have all the aspects of the supply chain. So this is the mission impossible to match the supply and demand. Design and management of the processes across the organization boundaries with the goal of matching the supply and demand in the most cost effective. देखिए customer is always demanding. ठीक है, डिमांडिंग होता है. आप जो शर्ट या शूज एक दफा पहनते हैं या जो शलवार कमीज आप पहनते हैं, यू डोंट गो फॉर द सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम लेआउट फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो योर डिमांड चेंज. आप जो गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं या बाइक इस्तेमाल करते हैं फॉर 4 years, 3 years, व्हाटएवर इट इज, यू डोंट गो टू बाय दैट सेम मॉडल, सेम कार इन द नेक्स्ट टाइम. ये इसी तरीके से है. सो हम जो प्रोडक्ट एक दफा यूज कर लेते हैं या जो रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे क्लोथिंग है, डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, हम बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम सेम मॉडल और सेम इस पर जा रहे हैं. लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बाय द सेम मॉडल आफ्टर ईयर्स. यार वो पुराना वाला ही ठीक है. सो वी नीड न्यू फीचर्स, वी नीड new equipments with new features, with new technology. So demand is always changing. Demand is never been stagnant. ठीक है. पुराना जमाना था जब लोग एक गाड़ी Sir, I have a question. जी जी. Sir, how can a supply chain business can forecast demand planning? Yeah, Forecast demand. we will go on this. ठीक है. A little slide about it, but ये forecasting का एक पूरा वो होता है, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है यूरोप वगैरह. सो उसको उसकी पूरी टीम होती है जो फोरकास्ट कर रही होती है. बट इस डिमांड को फोरकास्ट कैसे करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि देयर आर मेनी मेथड्स टू डू दैट. उसमें आपके डिपेंड ऑन योर बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. उस पर आप जो पिछला डाटा होता है, पिछले साल, रिसेंट ईयर्स का जो आपकी सेल का डाटा होता है, you get that and then you assume about it कि अच्छा पिछले साल अगर मैं शर्ट्स बेचता हूँ, let's assume, और मेरी 50,000 शर्ट्स बिकती हैं, so I have a small business, so I'll get the data. जैसे हम आप जब किसी भी आजकल के स्टोर्स में जा रहे होते हैं या बारकोड आप देख रहे हैं, पीओएस लगी हुई है, पॉज मशीन, आप ग्रोसरी लेते हैं, आप स्कैन करते हैं, आप शर्ट लेते हैं, स्कैन होती है, आप शूज लेते हैं, स्कैन होता है डब्बा, whatever it is. This pause machine is basically giving analysis to the production कि कौन सा कस्टमर क्या चाह रहा है. फिर at the end of the year or at the end of the week, at the end of a month or whatever the strategy of the organization, they analyze data लेके कि अच्छा किस कस्टमर की क्या चीज हमारी ज्यादा बिक रही है, what is the choice of the customer. पूरी दुनिया में चल रहा होता है. तो कस्टमर की जो सेल ट्रेंड्स हैं आपके, उनसे एनालिसिस कर रहे होते हैं, पीछे डेटाबेस के लोग बैठे हुए होते हैं, एंड दे गिव अ रिपोर्ट कि अच्छा जी after a year this product has been sold like hell, हमारे कस्टमर ने ये ज्यादा पसंद किया. तो आप उसकी बेसिस पे डिमांड एनालिसिस कर रहे होते हैं लास्ट ईयर्स के डेटा सेल के ऊपर. और मुख्तलिफ मेथड्स हैं, डेल्फी मेथड्स हैं, यूरोप में हम जाते हैं, मिडल ईस्ट में हम जाते हैं, सो फॉर्म्स देते हैं मुख्तलिफ, डिपेंड ऑन बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस. सो डिमांड को वो असेस कर रहे होते हैं, बट यू कैन नॉट असेस द डिमांड 100%. सो डिमांड का जब हम पढ़ने जाते हैं तो दे से कि डिमांड इज ऑलवेज रॉन्ग. सो कीपिंग इन माइंड कि हम 90% एक्यूरेट हो जाए टुवर्ड्स डिमांड इज द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितना आप पीछे चले जाते हैं, गलत असर करते हैं डिमांड को, उतना ही आप बिजनेस से दूर होते हैं, यानी प्रॉफिट से दूर होते चले जाते हैं. सो उसको आगे एक दो स्लाइड्स हैं, आई थिंक इसमें वो आ जाता है. सो डिमांड को केटर करना इज ऑल दी सप्लाई पार्ट इज टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर डिमांड. मैं इसके एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत है. मैनी इयर्स बैक निशान ने काम किया था जापान में कि व्हाट दे डिड कि शोरूम्स पे जब पेरेंट्स गाड़ियां खरीदने या अपनी गाड़ियां देखने आते थे तो दे डिस्प्लेड अ बिग एलईडी जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए अट्रैक्शन रखी हुई थी कि जी आपकी मुख्तलिफ एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था जिसमें वो मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स इकट्ठे करके अपनी कॉन्सेप्चुअल कार्स बना सकते. So ultimately they are getting the idea what will be the demand after 10 years. ये बच्चे जो आज 9 साल के, 10 साल के, जब 17-18 years के होंगे, so what they need as a car. Toyota does the same in the whole world. वो कंपटीशन कराता है, टोयोटा जापान, वो पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट कार का कंपटीशन कराता है जिसमें मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से दे डिज़ाइन अ कॉन्सेप्ट कार ऑन अ पेपर एंड देन दे गिव द प्रेजेंटेशन. उसके अगेंस्ट उन बच्चों की एजुकेशनल
जो फर्दर रिक्वायरमेंट है या फीसेस हैं उसको स्कॉलरशिप का फुलफिल करते हैं, एंड दे नो कि अच्छा ये जो बच्चा आज 9-10 साल का है, ही इज गोइंग टू बी अ ड्राइवर आफ्टर 10 years, तो हमें किस किस्म की गाड़ियाँ चाहिए. So there are many ways to assess the demand, futuristic demands of the customer. So हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है. हम बहुत ही कम इस तरह की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिवर ब्रदर्स के अलावा शायद कम ही इस तरह से चल रहा होता है. बट असेसिंग ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ट्रेंड्स. Why it is difficult to match the demand? Because uncertainty है ना. आपने अगर if I was a young man और मुझे 82 Corolla पसंद है या 84 Honda पसंद है, so वो डिमांड चेंज होगी. अगर मैं अपने बच्चे को या यंग जनरेशन को, आप जैसे बच्चों को, डिमांड इज चेंज. सो अनसर्टेन है डिमांड, कभी भी चेंज हो जाती है. इट्स नॉट स्टैग्नेंट, और आपको उसको मैच करने के लिए सप्लाई उसके हिसाब से करनी पड़ती है. मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि आप अगर सर्च करें, आई डोंट नो, आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा, एक्वा एंड फ्यूजी वर द टू बिग ब्रांड्स ऑफ द फोटोग्राफी. आज भी लोग फोटोग्राफी करते हैं, बट डिजिटाइज हो गई, कंप्यूटर में आती है, फिर प्रिंट होती है. जमाने में आप फोटोग्राफ खींचते थे, रील डलती थी. देयर वर टू बिग नेम्स इन द वर्ल्ड, एक्वा एंड फ्यूजी. ठीक है, नाउ दे हैव वाइप्ड अप इन दिस बिजनेस. ठीक है, उनके ऑल्दो मेडिकल साइड के बिजनेस बहुत चल रहे हैं. एक्सरेज की फिल्मिंग होते हैं, अल्ट्रासाउंड की करते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे याद है, एक्वा एंड फ्यूजी की आप फिल्म रोल्स लेते थे, फिर उसे आप कैमरे में 30 या 50 जितनी भी होती थी, मतलब 30 या 20 पिक्चर्स खींच सकते थे. फिर वो रोल जाता था डेवलप होने के लिए, तो मशीनें लगी थी, लोगों का बिजनेस चल रहा था, फिर वो डेवलपमेंट होती थी, एल्बम्स बनती थी, एंड ऑल दैट. बट दे डिड नॉट फोरकास्ट द डिमांड ऑफ द फ्यूचर. क्या हुआ, वो इस बिजनेस से वाइप हो गए. उन्होंने डिजिटाइजेशन को कंसिडर ही नहीं किया, या डेलिबरेटली नहीं किया, या उनका मोटिव नहीं था. सो दे हैव वाइप्ड अप फ्रॉम द वर्ल्ड. अब आपको फ्यूजी और उसका कोई ना कैमरा नजर आता है, ना डिजिटाइजेशन नजर आती है, ना कुछ भी हो रहा है. सो इसी तरीके से जो बिजनेसेस फ्यूचर को डिमांड कर रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वही सक्सेस का होगा. ठीक है. सो चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट है. पहले लोग इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, रील धुलवाने जाते थे, डेवलप होने में टाइम लगता था. नाउ यू जस्ट हैव अ क्लिक ऑन योर मोबाइल एंड गेट द पिक्चर विद ऑल जो फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं. यानी अब तो आप चांद को भी जूम कर सकते हैं. सो रिक्वायरमेंट इज चेंजिंग विद टेक्नोलॉजी. सो जो बिजनेस में है, नोकिया वाइप तक हो गया एज अ मोबाइल. द रीजन वाज दैट फोर्स ही नहीं कर सका एंड्रॉइड सिस्टम, उसको वो इतनी जल्दी फोर्स ही नहीं कर सका. नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट बैक इनटू द बिजनेस. सो डिक्रीजिंग प्रोडक्ट लाइफ, आप देख लें प्रोडक्ट लाइफ बहुत डिक्रीज है. यू कैन नॉट यूज अ मोबाइल फॉर 5 years, यू जस्ट यूज इट फॉर a year or two and then there are new products. लैपटॉप्स की लाइफ कम हो गई है. गाड़ियां आप हर दूसरे साल एक नए शेप में, नए मॉडल्स में आ रही होती हैं. अगर आप ओल्ड एरा की गाड़ियां देखें तो आपको याद होगा जी, 80s के जो मॉडल है, 81, 82, 83, वो 86 तक वैसे ही रहे. 82 से 83, 3-3 साल, 5-5 साल एक जैसी मॉडल होती है. Now the product life is changing with features. So आपका business उसी हिसाब से reshape होगा. Fragmentation of the supply chain ownership, because your business is globalized. आपकी प्रोडक्शन किसी और मुल्क में है, आप कॉस्ट इफेक्टिव के लिए आपने अफ्रीका में प्रोडक्शन लगाई हुई है, चाइना में प्रोडक्शन की हुई है, रॉ मटेरियल आप साउथ अफ्रीका से मंगा रहे हैं. I mean, you're saving the money, so your business is fragmented in different areas. So उसको मैनेज करना भी it's not easy. क्या आप ये कहें कि जी एक ही प्रोडक्शन प्लांट है, वहीं पे वेयर हाउसिंग है, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं पे जो है सब कुछ है. बट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बिजनेस है. आपका एयरबस की एग्जांपल है, कंसोर्शियम है फ्रांस का, यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, इनका कंसोर्शियम है. तो कुछ चीज़ें जहाज की बन के आती हैं, फ्रांस में फैक्ट्री में बनती हैं, कुछ इंग्लैंड में बनती हैं. नाउ दे हैव इन्वॉल्व्ड इंडिया एंड चाइना एज वेल फॉर मेकिंग द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. सो कुछ चीज़ें चाइना से आ रही, तो इस बिजनेस को मैनेज करना इट्स नॉट ईजी. कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव इन द सप्लाई चेन, सर्टेनली देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है. मार्केटिंग की अपनी पर्सपेक्टिव्स हैं. वो कहता है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बना के रखो, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, जो हम पैकेजिंग चाह रहे हैं उसी पैकेजेस में होने चाहिए, प्रमोशंस होनी चाहिए. प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है जो बिगर साइज होना चाहिए प्रोडक्शन का. इन सेम गो मैं बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बना लूँ, मैं बार बार छोटे बड़े साइज में चेंज नहीं कर सकता. जो आपकी रॉ मटेरियल की जो फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज हैं वो करीब होने चाहिए. शिपमेंट्स जो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा करीब होनी चाहिए. आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन बनाएं और निकालते चले जाएं. सो देयर ओन जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं डिपार्टमेंटल, दे बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या कहते हैं कि ट्रक जब भी जाए आधा नहीं जाएगा, वी नीड फुल ट्रक लोड. ठीक है, ताकि हम हमारी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कम से कम हो, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम से कम हो.
नंबर ऑफ SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, वो बेशक लाखों में हो, लेकिन अगर मैं सोप बना के बेच रहा हूँ तो जो बड़ा या मैं शैम्पू बनाता हूँ, जो मेरी बड़ी बॉटल है, स्मॉल बॉटल है या मीडियम साइज बॉटल, सो आई नीड मैक्सिमम SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट काउंट करने में आसान हो बेशक लाखों में, रादर देन आप ये कहें कि जी एक डब्बे में ये साइज है, दूसरे डब्बे में ये साइज है, तीसरे डब्बे में साइज है, पांचवें डब्बे में साइज है, तो इट्स काउंटिंग इज डिफिकल्ट. So managing a stock keeping units in a big quantity is easy, but many kind of stock is managing that is difficult. So हर एक के अपने objectives and departments. So if we are in a supply chain, yeah, operation management, so we have to take care all the departments requirement in the same place. वरना कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई हो रही होती है, प्रोडक्शन वाला कहता है जी मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल्स एंड मार्केटिंग कहता है जी हमें तो चाहिए, हमें तो नीले रंग की गाड़ी भी चाहिए, हमें तो पीले रंग की गाड़ी भी चाहिए, हमें जो पैकेजिंग है वो इस साइज में चाहिए, इस ग्राम में चाहिए, हमने स्पेशल कस्टमर्स जो है हमारे, उनको ये चीज़ें देनी है. प्रोडक्शन वाला उसके हिसाब से नहीं चल सकता, प्रोडक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट. देन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहेगा नहीं जी मैं आधा ट्रक नहीं बेच सकता, आप क्या मुझसे हर दफा आधा ट्रक. देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन अ सिंगल फॉर्म. आपने अपनी फॉर्म से भी बाहर काम करना. सो लूजिंग साइड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह बैठा हुआ है. एंड अगर तो आप एज अ सप्लाई चेन अम्ब्रेला नहीं काम कर रही होती ऑर्गेनाइज, तो ये होता है कि जी कुछ डिपार्टमेंट मुश्किल में, पैनिक में, और अदर आर एंजॉइंग देयर जॉब. सो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट ये होगा कि आपकी बोर्ड सिंक हो जाएगी, ये बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा. सो इट्स ओवरऑल एफर्ट विद ऑल और डिपार्टमेंट. एवोल्यूशन सप्लाई चेन की 1910 से 20 में फोर्ड कंपनी थी, उसने आज भी है, फोर्ड ने गाड़ियां बनाना शुरू की एंड दे ओन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई चेन. यानी उन्होंने अपना आयरन की फैक्ट्री भी उनकी अपनी थी, इंजन वो खुद बना रहे थे, गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी खुद कर रहे थे, एवरीथिंग दे हैड बाय देमसेल्फ. तो फोर्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि जी, और उस जमाने में उसका एक स्लोगन था कि जी कार इज ओनली ब्लैक. सो देयर इज ओनली ब्लैक कलर कार जो कि अमेरिका में बिकती थी, क्योंकि वो उसने रेवोल्यूशन लाया, लेकिन उसके साथ साथ उसने तमाम चैनल्स को खुद खरीदा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अपने पास थी, रिटेलिंग, मैकेनिकल सर्विसेज भी उसकी अपनी थी, बट दैट कॉस्ट एक्सपेंसिव. अमीर लोग गाड़ी खरीद सकते थे सिर्फ. नाउ टोयोटा 1960 और 1970 के दरमियान में आया और उसने सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट दिया, सेकंड रेवोल्यूशन. उस और आज भी दुनिया में टोयोटा की सप्लाई चेन ही पाई जाती है. उसमें टोयोटा हैज गिवन द कॉन्सेप्ट कि डू व्हाट यू आर बेस्ट इन, और बाकी रेस्ट जो है ना वो आपने सप्लायर्स को देना. लाइक टोयोटा, व्हाट टोयोटा डज, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार नाउ डेज डज, स्टार्टेड बाय टोयोटा, कि आप इंजन बनाते हैं, आपको विंडो शीशे कहीं से आ रहे होते हैं, हार्नेसिंग वायर्स कार की कहीं से आ रही होती है, बैक लाइट फ्रंट लाइट किसी सप्लायर से आ रही होती है, सीटें कोई और बना रहा होता है, डैशबोर्ड कोई और बना रहा होता है, बॉडी आपके पास पार्ट्स बन के आ रहे होते हैं, आप उसे फ्रेम के ऊपर चढ़ा देते हैं, आपकी ब्रेक लेदर्स कहीं से बन के आ रहे होते हैं, टायर कोई और बना रहा होता है. सो देयर आर मेनी सप्लायर्स इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन ऑफ अ कार. तो रादर डूइंग एवरीथिंग, डू व्हाट यू आर बेस्ट इन. यानी यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर ओन इंजन्स, यू आर मैन्युफैक्चरिंग योर ओन चेजेस, बाकी चीजें आप बाकियों से क्वालिटी वाइज ले लें एंड यू असेंबल द कार. द सेम कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार, कि आप सिर्फ अपने स्पेशल काम को अपने पास रखें, बाकी आप रेस्ट जो है वो अशोर्ड के बाकी लोग आपके साथ. तो एक और चेंज आई दुनिया में, अब दुनिया में सप्लायर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, और उसके बाद थर्ड आपकी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरी इंडस्ट्रीज भी क्वालिटी वाइज इनहेंस हो गई. सो इस तरह से सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ सप्लाई चेन आता है. फिर 2000 में डेल ने कॉन्सेप्ट दिया कि ऑनलाइन बिजनेस. सो थर्ड रेवोल्यूशन है, और अब फोर्थ रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी लाइक बिटकॉइन और करेंसी के बगैर काम करना, लेकिन अभी वो इवॉल्व हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा. सो थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन में आपका ये होगा कि यू डोंट नीड मनी, बार्टर सिस्टम होगा, आप अपने कुछ कॉइन्स उठा के किसी और को दे देंगे और उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोडक्शन में और कस्टमर भी आपको यू जस्ट गिविंग यू द कॉइन्स ऑनलाइन एंड वो होती है. सो इस तरह से आपकी सप्लाई चेन इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा. सप्लाई चेन को डिज़ाइन करना पड़ता है सर्टेनली. जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, सो वी हैव मैनी वेयर हाउस, मैनी फैक्ट्रीज. एयरबस की बात करें, बोइंग की बात, सो देयर आर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो उसे प्रोड्यूस करते हैं, तो सप्लायर नंबर 3 बन जाते हैं. सप्लाई चेन में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है उसके पीछे आपका सप्लायर है, उसके पीछे सप्लायर है, उसके पीछे जितने मल्टीपल टायर्स आप बना सकते हैं आप बना सकते हैं. सो जैपनीज हैव गिवन दिस कॉन्सेप्ट कि आपका जो सप्लायर है दैट इज योर पार्टनर, और उसका भी अगर कोई सप्लायर है तो दैट इज ऑल्सो योर पार्टनर. उसका ख्याल करें, उसकी प्रोसेस को बेहतर बनाएं.
ताकि वो जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करे और इसको दे फॉर finish the product या raw material, and then this will convert into a raw material and give it to you. So these are all your stakeholders, इन सबका ख्याल रखें। और फिर वेयर हाउसिंग है, फैक्ट्री है, आईटी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, देन फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है मुख्तलिफ पार्ट्स में, देन इट गोज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू वेयर हाउसिंग, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड देन स्टोर्स एंड देन डिफरेंट कस्टमर्स। सो अगर एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन देखें तो उसमें बेइंतहा लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर मैं इसी की एग्जांपल ले लूँ एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, एवियोनिक्स के इंजीनियर भी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर्स भी चाहिए, एविएशन इंजीनियर्स भी चाहिए। यू नीड फ्यूजलाज है, उसकी बॉडी पार्ट्स हैं, उसके इंजन्स हैं, many things involved in this. So आपको उसको मैनेज करना, उसके लिए आप अपनी एक सप्लाई चेन डिजाइन करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन डिजाइनिंग है। फिर एक कुछ नॉर्मल सप्लाई चेन है जो हमारे यहाँ होती है, जैसे एक मिल्क रन कहते हैं बेसिक्स को। उसमें जैसे ये आपका दूध वाला आपको दूध पहुंचाता है घर पे, सो वो एक्सट्रैक्ट करता है, कहीं उसका फॉर्म वॉर्म होता है, डेयरी फॉर्म होता है, वहां से दे एक्सट्रैक्ट, दे ट्रांसपोर्ट। अगर वो पैकेज फूड है तो कहीं पे वो जाके प्रोसेस होता है, देन पैकेजिंग होती है, सेंट्रलाइज हब में पहुंचता है, देन उसके बाद उसके वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड मिल्क रन, बेसिक सप्लाई चेन। आपको कुछ नहीं करना, आपने प्रोडक्ट उठानी है, रॉ मटेरियल उठाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करने हैं, देन यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट एंड गोज बैक। सो ये तो बेसिक सप्लाई चेन। लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है, थोड़ी सी प्रोडक्शन की तरफ आ गया। डेनियम का एक एग्जांपल है, आप कहीं से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, देन यू शिप इट थ्रेड्स टू समवेयर एल्स, जहाँ पे लूम्स बनेंगे। लूम्स बनने के बाद जो है वो जीन्स में कन्वर्ट होगा, कपड़े में, देन इट इज शिप्ड समवेयर एल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं उसे खरीदूंगा एज अ फैक्ट्री ओनर, फिर मैं उसे जीन्स की ट्राउजर्स या शर्ट्स या जैकेट्स में कन्वर्ट करूंगा, देन आई शिप इट टू समवेयर एल्स टू स्टोर। फिर वहाँ से स्टोरेज के बाद वो बाहर जाएगी किसी रिटेल की दुकान पे या किसी आउटलेट पे, एंड देन इट गेट्स सोल्ड। सो you have to design your supply chain according to your business. सही है। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, इजी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन इज ऑप्शन। सो आपको हर बिजनेस को अपनी सप्लाई चेन डिजाइन करनी है। सो यू नीड सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स इन दिस। देन वी हैव अनदर सप्लाई चेन इज सर्विस सप्लाई चेन। अब तो हमने प्रोडक्शन मेनली 90% सप्लाई चेन इज मूव्ड अराउंड प्रोडक्शन, बट देयर आर सर्विसेज सप्लाई चेन। लाइक मैं अगर एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लूँ, वी गो टू अ गुड हॉस्पिटल, तो उसके पीछे एनर्जी सप्लायर है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप सप्लायर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, और आइदर हैव अ कॉन्ट्रैक्टल सप्लायर, इक्विपमेंट सप्लायर है, मेडिसिन प्रोवाइडर सप्लायर्स हैं, जेनिटोरियल सर्विसेज हैं जिसमें आपके ऑपरेशन थिएटर्स की क्लीनिंग है, वार्ड्स की क्लीनिंग है, ऑल दैट। देन यू हैव मेनी मटेरियल सप्लायर्स। सो हम क्या कर रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर, वी गो देयर, गिव पे द मनी, अनफॉर्चुनेटली पर्सन, वी कैन पे द मनी एंड गेट द सर्विसेज। या फिर कॉर्पोरेट कंज्यूमर होता है जिनका कार्ड बना होता है कि आप जाएं, बट हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसके बैकअप में बेइंतहा सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। लाइक सेम रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हम फूड को एंजॉय करते हैं, बट उस फूड को प्रोवाइड करने के लिए उस रेस्टोरेंट के भी बेइंतहा सप्लायर्स होते हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रिक से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सो के इलेक्ट्रिक इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन कंपनी, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसकी इक्विपमेंट्स हैं, उसकी एनर्जी प्रोवाइडर हैं, फ्यूल प्रोवाइडर हैं। इसी तरह गैस आ रही है हमारे पास, या फ्यूल आ रहा है हमारे पास। सो खैर फ्यूल तो प्रोडक्ट है, बट इस तरह की सर्विसेज हमारे पास आ रही होती है। तो सर्विस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, डीएचएल है। सो दे हैव मेनी सप्लायर्स एंड दे हैव ऑल द सिस्टम। उनकी अपनी एक सप्लाई चेन होती है जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, बट दे फैसिलिटेट इन सर्विसेज। अब आ जाते हैं डिमांड को फोरकास्ट कैसे करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसको बैक टू दिस। फ्यूचर की स्टेटमेंट है ऑलवेज रॉन्ग। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी फोरकास्ट इज ऑलवेज राइट, द बिजनेस वाइंड अप। तो आपको पहला रूल तो ये है कि यू हैव टू थिंक दैट माय फोरकास्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। बोथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट एंड मेजर ऑफ द एरर। हम करते हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि पिछले डाटा को उठाते हैं, एक्सपर्ट्स को बताते हैं, एंड वी एनालाइज व्हाट वी हैव सेल मोर, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड खत्म हो गई है, हाउ टू क्रिएट फर्दर डिमांड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और मेजरमेंट ऑफ द एरर हम देखते हैं कि पिछले साल जो हमने फोरकास्ट किया था और जो हमने एक्चुअल अचीव किया उसमें कितना डिफरेंस था। देन बेसिस ऑन दीज एक्सपीरियंसेस यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म फॉर अच्छा, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है
जो कि लेस एक्यूरेट होती है। आप पिछले 10 साल का डाटा नहीं उठा के देख सकते, या 8 साल पहले जो आप कर रहे थे उसको नहीं देख सकते। यू नीड टू टेक द लास्ट 1 to 3 years डाटा। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट आपकी ज़बरदस्त होती है। आप हर 3 महीने का या पूरा साल का फोरकास्ट करते हैं, बट क्वार्टरली या थर्ड मंथ या हर मंथ में से आप चेक कर रहे होते हैं। Aggregated forecasts are more accurate than disaggregated forecast. Aggregated forecast is mean that अगर मेरी बिस्किट्स बनाने की फर्म है, मैं वेफर्स भी बनाता हूँ, बिस्किट्स भी बनाता हूँ, या मैं सोप्स बनाता हूँ डिफरेंट, या इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, और मैं 6-7 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। सो इट्स बेटर टू हैव एग्रीगेटेड। ठीक है जी। आप जो है कंबाइन कर लें प्रोडक्ट टाइप्स को, और देन इंडिविजुअल फोरकास्ट नहीं कर सकते। In order to forecast the past have the same relevance in the future. ठीक है जी। प्रोक्योरमेंट आ जाती है। प्रोक्योरमेंट परचेजिंग का मतलब ये है कि आप मर्चेंडाइज ऑब्टेन करते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या खुद अपना डिपार्टमेंट एनहांस करते हैं। सो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कॉस्ट कम से कम यूटिलाइज हो। So objective of the purchasing department is to minimize the costs of the procurement function. Then supply chain आप supplier relationship manage कर रहे होते हैं, because without good supplier relationship management आप कभी successful नहीं होते। Good supplier relationship management can provide many benefits such as flexibility in terms of delivery, better quality, better information and better material flow between buyers and suppliers. So आपका relationship जितना अच्छा है आपके suppliers के साथ, if you have one supplier, you have a good relationship, you have 100 suppliers, आपको उनकी जरूरत हर वक्त पड़ेगी। So they will be benefited for you to delivery before time, to give you credit a lot, to give you update about what kind of product will be produced in future. So इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। इस तरह की चीजें आप कर रहे होते हैं इन सप्लाई चेन। And you have to inventory management. Inventory में आप मटेरियल लेते हैं और उसे सप्लाई करते हैं फिनिश गुड बना के। General perception is not that if we assess about it. So depending on organization, 20 to 60% of your asset is involved in inventory. Either आपने raw material में invest किया होता है bulk में, either आप finished good बना के रख रहे होते हैं अपने पास to cater the future uncertainty. So आप depend on your business, 20 to 60% of your total asset in a balance sheet is inventory. So ये पूरी दुनिया में हो रहा होता है। So a huge chunk of amount is invested in inventory. Either it's a raw material invested, the semi-finished good products or finished products. तो आपके बहुत सारे पैसे कंपनी के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। So how much better you are in your demand forecasting, तो इन्वेंट्री उतनी कम होती है। जितना आप अच्छा फोरकास्ट नहीं करते, उतनी आप अपनी अनसीन अपॉर्चुनिटीज को कैटर करने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बना के रखते हैं। देन लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंट एक वो है फैक्टर, दिस इज सम काइंड, ये भी एक लॉजिस्टिक ही है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन लॉजिस्टिक मींस यू प्लान, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल द फिजिकल फ्लो ऑफ द मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अगर आप इसको प्लान नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, सो योर बिजनेस विल बी गोइंग अप। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये भी लॉजिस्टिक है, बट इट इज नॉट प्लान, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो आपको लॉजिस्टिक को प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना है। लॉजिस्टिक फंक्शन, थ्री मेन फंक्शन है लॉजिस्टिक की सप्लाई चेन। You need to manage the material, either it's a raw material, either it's a semi-finished products or finished products. आप प्रोडक्शन कंट्रोल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल अपनी प्लान करके दे रहा होता है, मंथली, वीकली, ईयरली, 6 मंथली, पूरा का पूरा। और आप उसे अगर मटेरियल फ्लो नहीं करवा सकते, पहुंचा नहीं सकते, तो इट्स फेल। तो आपको उसको सपोर्ट करना है। एंड देन यू हैव द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इंटरलिंक्ड है तीनों। आपको मटेरियल मैनेज करना होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल को सपोर्ट करना होता है, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। कंपोनेंट्स आपके वेयरहाउसिंग है, लॉजिस्टिक में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हैव मेनी वेज, एयर, सी, ट्रेन, ट्रक, पाइपलाइन, उसमें फ्यूल, गैस, पेट्रोलियम। वाटरवेज यूरोप में चलता है, दे हैव फेरीज, उनकी क्योंकि ज़मीन कम होती है, सो दे यूज द फेरीज। स्मॉल पार्सल, यूपीएस, टीसीएस, पार्सल सर्विसेज। रोपवेज द ओल्ड वेज, या आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ यू हैव टू
आप सामान डालते हैं ओवर द रिवर्स जो है ना, आप रोपवे से खींच रहे हो। सो ट्रांसपोर्टेशन, एयर इज द सी इज द चीपेस्ट वन, सबसे चीपेस्ट पाइपलाइन है, बट इट कॉस्ट वंस आपको एक्सपेंस करने होते हैं एक ही दफा। मेंटेनेंस इसकी बहुत सस्ती होती है। सी जनरल प्रोडक्शन में सी इज द चीपेस्ट वन, बट इट टाइम कंज्यूमिंग, 6 महीने 3 महीने समुद्र में रहता है। एयर इज एक्सपेंसिव, बट अगर टाइम क्या रेसिप्रोकल है, टाइम कम है तो आप पैसा खर्च करते हैं, बट इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आ सकती। जनरली ट्रेन एंड ट्रक्स एंड पाइपलाइन इज द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि चीपेस्ट है, कंट्रोलेबल है और ज़्यादा क्वांटिटी में जा सकती है। वेयर हाउसिंग पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक, जिसमें आपको इसकी लोकेशन, नंबर, टाइप, साइज, लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग को डिसाइड करना होता है, and as a warehouse specialist we have to take care of all these things. सप्लाई चेन के 8 बेसिक प्रोसेसेस हैं, जिसमें आप कस्टमर को मैनेज कर रहे होते हैं, उससे आप रिलेशनशिप अच्छा होता है, कस्टमर को सर्विस बेहतर दे रहे होते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं कि किसका ऑर्डर कितना % फुलफिल होता है विद इन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप आपको डेवलप करने होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन होती है, और रिटर्न्स मैनेजमेंट होती है, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कम है। मैन्युफैक्चरिंग is a process of converting parts or components in raw material into finished products. Finished goods meets consumer या customer specification and expectation. So आप raw material लेते हैं, उसे convert करते हैं, and then you sell it out, पूरी supply chain design करते हैं, because you need to satisfy your customer demand. Uncertainty है supply chain की, one rule is supplier responsible. Uncertainty है कि customer की demand फौरन change हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए यू नीड एक्सेस इन्वेंट्री। अपने वेयर हाउसेज में आप एक्सेस इन्वेंट्री बना के रखते हैं। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी ये हो सकता है कि आप तो सर्टेन नहीं थे तो आप लेट हो जाते हैं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते, आपकी जो अनसर्टेनिटी है उसके अगेंस्ट आप जो है वो इंश्योरेंस, सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी आप नहीं कर सकते, तो इन्वेंट्री बना के रखते हैं, या तो इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो जाती है या एक्सेस इन्वेंट्री जो ज़ाया हुआ। फैक्टर्स जो है वो अनसर्टेनिटी में कि डिमांड इनएक्यूरेट है, फोरकास्ट नहीं कर पाया, वेरिएबल लीड टाइम, आपके जो है लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी लेट्स हो रही हैं, शिपमेंट्स कंप्लीट नहीं करके भेज रहे हो, प्रोडक्ट चेंज, बैच ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि आप आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे पाकिस्तान में डॉलर्स कंट्रोल में नहीं होता, इन्फ्लेशन ऑर्डर्स। सो इन द एंड वी हैव सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, तो जैसे मैंने शुरू पिक्चर में दिखाया था कि इन्फॉर्मेशन हर तरफ शेयर होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में नहीं होती। हम बुलविप इफेक्ट एक कहलाता है, जिसमें पाइल अप हो जाती है इन्वेंट्री हर लेवल पे, उसे रिड्यूस करते हैं, अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन हो जाती है, फास्टर रिस्पॉन्स है, ट्रस्ट डेवलप होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। CPFR is a method for the forecasting. This is collaborative planning, forecasting, replenishment and design का पूरा CP में चैप्टर है। इसके लोग होते हैं, इसके स्पेशलाइज लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वो इस बुलविप इफेक्ट को कम करते हैं। लोअर कॉस्ट है, मटेरियल, लॉजिस्टिक, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम से कम करते हैं, कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं और कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन में ही होता है कि आप फिर वर्क फ्लो, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं इकट्ठे में दिखाते हैं। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये सेशन एंड होने वाला है, 4 मिनट लेफ्ट, ओके तो फिर एंड हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू करें। जी। सो दीज आर सम इंटीग्रेशन आपको करनी होती है एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को मैं हटा रहा हूँ, सेशन ERP इज देयर। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। देन देयर इज अ ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको ग्लोबली आपके प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग इज देयर, सो इसको चैलेंजेस। एंड देन इंटरनेशनली वी हैव ग्रीन सप्लाई चेन, जहाँ पे आप पर पाबंदियाँ बेनतहा हैं कि आपको कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन। एक क्विकली मैं ये कर रहा हूँ कि आप कैरियर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आपके पास ये 9 या 10 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बेसिकली परचेजिंग एजेंट, ऑपरेशन मैनेजर, लॉजिस्टिक एनालिस्ट, परचेजिंग मैनेजर, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिशियन, लॉजिस्टिक मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर,
storage and distribution manager can be obtained as a career in supply chain. और आपके पास international certifications options होता है. So there are many top 10 मैंने रखी हैं इसमें. Epics है, CPIM है, endorsement है. So I think this is long enough. If you have any questions, so we can proceed. So I have a question that what are on-ground challenges for a firm in supply chain, regardless the bookish knowledge? I mean, it's depend on the region. अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखें तो आपकी इन्फ्लेशन ही नहीं कंट्रोल हो रही. So external factors are there which you cannot control. आपकी pricing control नहीं होती. आपके government की support नहीं है आपको. You have many challenges. You don't have the professionals in the market. और अगर हैं तो हम उन्हें इतनी salaries नहीं दे रहे होते. Like अगर आप effort करके you grow your career in supply chain like 5-10 years की effort करके, but you won't get that much salary. बहुत कम companies हैं, 4-5-6 जो multinational. Otherwise आप local national companies जो हैं जो कि local brands हैं, तो challenges इस तरह से है कि वो अपनी price कट, उनको processes नहीं समझ आ रहे, उनको ये इससे इंटरेस्ट नहीं है कि ERP 3 करोड़ का लगाना है. They want to save money from this. जैसे कि अच्छा जी मैंने वैसे को अपना मैनेजर रख लिया, he has to do everything. उसको रखा इसीलिए है कि भाई तुम जो है ना प्राइस कंट्रोल करो. But they don't. So in Pakistan perspective आपके पास प्रोफेशनल्स की कमी है. आप प्रोफेशनल्स लेना नहीं चाहते. You don't give them good amount. You don't understand end-to-end supply chain जो कि आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन. मिडिल ईस्ट में आप देख लें, दुबई देख लें, दे ग्रो वेरी फास्ट क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा है. इवन बांग्लादेश दे हैव एक्सेप्टेड दिस चेंज, सो दे आर ग्रोइंग. ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के टैक्सेस. जी एक्सक्यूज मी सर, ये सेशन क्लोज करना पड़ेगा. ओके 2 मिनट लेफ्ट रह गए. ठीक है, 2 minutes हैं तो Okay, sir. so there are many factors. Right. वैसे logistic and transport and price changing, dollar control, all that. All right, वसी sir. प्लीज सर के बारे में आप कमेंट्स करें. सर ने आपको किस तरह गाइड किया. Sure, I will do that. And secondly, I will I would like to interact with you on premises if it's possible. Yeah, sure. Sure. All right, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you sir so much for giving your time. Thank you. I'm really sorry for this late. So thank you. Take care. If you want take admission, you contact with OMNI Academy. Allah Hafiz. Take care of this.